السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. ہے مجھے یہاں سے نکالو. وہ اس کمرے میں بند بری طرح چیخ رہی تھی. نفاست سے کرلز کیے گئے اس کے بال بکھر سے گئے تھے. آنکھوں میں مٹا مٹا سا کاجل پھیلا ہوا تھا. اس کا دوپٹہ اس وقت زمین پر گرا ہوا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی اس حالت سے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئی. وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی، مگر یہاں کوئی بھی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا. اور پھر اس نے اس شخص کو پکارا تھا جو اس کی ایک کال پر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس وقت اسے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. مس یشل، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اگر آپ کو آفس آنا ہے تو ٹائم پر آنا ہوگا، ورنہ آپ کو آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھیں اور گھر کے کام کاج میں توجہ دیں. یہ انٹرنشپ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں. زارون آفندی نے سنجیدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑی غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ اور لاپرواہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا. زارون کی بات سن کر یشل نے سر اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا. اس کے چہرے کا زاویہ بگڑا ہوا تھا. اس کے چہرے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے زارون کی ڈانٹ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، مگر وہ پھر بھی ضبط کیے کھڑی تھی. اور پھر اس کی منمناتی سی آواز ابھری. وہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی. یہ کہتے ہوئے یشل نے اپنا سر جھکایا تھا. زارون نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا. وہ اس کے ان بہانوں کو بہت اچھے سے جانتا تھا. جی، جب آپ رات بھر بیٹھ کر موویز دیکھیں گی اور فجر کے وقت سوئیں گی تو آپ کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ زارون نے کل رات اسے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مووی دیکھتے دیکھ لیا تھا، جب ہی وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا. یشل نے فوراً گڑبڑا کر زارون کی طرف دیکھا. اس کی تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ زارون نے کل رات اسے دیکھ لیا تھا. آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو جلدی سو جاتے ہیں. یشل کے منہ سے بے اختیار پھسلا اور پھر اس نے بے اختیار ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی. زارون نے ضبط سے گھور کر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی زبان میں کینچی لگی ہوئی تھی. مس یشل، جس وقت آپ سونے کے لیے جا رہی تھی اس وقت میری صبح ہوئی تھی. زارون نے طنز کیا. یشل اس کی بات سن کر بے انتہا شرمندہ ہوئی. اس بار وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی. اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی. زارون نے سر جھکائے کھڑی یشل کو گہری نظروں سے دیکھا. اب آپ کو مراقبے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اور جا کر اپنے کام پر دھیان دیں. میں آپ کو کسی سے فالتو بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں. زارون نے خشک لہجے میں اسے جانے کو کہا اور ساتھ ہی اسے وارن کیا. اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر یشل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر وہ اس قدر جلدی میں تھی کہ اسے گلاس وال دکھائی نہیں دی اور وہ بری طرح سے گلاس وال سے ٹکرائی. آفس میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی. زارون نے بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. یشل اپنا سر تھامے وہیں زمین پر بیٹھ گئی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے سر پر بہت زور سے لگی تھی. زارون پریشان ہو کر فوراً ہی اس کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا. یشل ساکت سی اپنے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی. وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. وہ تو زارون کے روم سے باہر نکل رہی تھی، پھر جانے وہ کس چیز سے ٹکرائی تھی. یشل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے. زارون نے پریشانی سے اس کا ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے اس کے سر کو دیکھا. اس کا ماتھا ہلکا سا سوج گیا تھا. یشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زارون نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے کھڑا کیا اور اسے لا کر ایک کونے میں رکھے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر بیٹھا. زارون نے ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے سے سختی سے دبایا تھا. یشل کے منہ سے چیخ نکلی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو مجھے چوٹ لگی ہے اور اوپر سے آپ مجھے اور تکلیف دے رہے ہیں. یشل نے کراہتے ہوئے حیران نظروں سے زارون کی طرف دیکھتے کہا. زارون نے نفی میں سر ہلاتے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا. آنکھیں گھر چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ اتنی بڑی گلاس وال تمہیں دکھائی نہیں دی؟ زارون نے بگڑے ہوئے تیوروں سے اس سے سوال کیا تھا. مجھے چوٹ لگی ہے زارون، اور آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں.
यशल ने अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों में आंसू भरे जारून से कहा। यशल के मुंह से अपना नाम सुनकर जारून का दिल बेख्तियार ही धड़का था। वो चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में खो सा गया। यशल सर झटकती हुई वहां से उठकर जाने लगी थी। कुछ देर बैठ जाओ ताकि तकलीफ ना हो। जारून उसे मजीद अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। नहीं, मैं ठीक हूं। इससे ज्यादा डांट आज की तारीख में नहीं सुन सकती, यशल ने जारून के रूम से निकलते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर जारून के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। यशल घर आकर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। जब वो सोकर उठी तो रात हो चुकी थी। कुछ देर तक वो कुशलमंदी से अपनी जगह लेटी रही, मगर अब उसे शदीद भूख का एहसास होने लगा तो उसे ना चाहते हुए भी बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। वो अपने बाल समेटती हुए उठी और बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से समेटकर एक बन की शक्ल दी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे थे, जिससे कुछ हद तक उसकी नींद भाग गई थी। बेड से दुपट्टा उठाकर उसने अपने कंधों पर डाला और अपने कमरे से बाहर आई। घर के सभी अफराद लाउंज में जमा थे। घर की खवातीन किचन में मौजूद रात के खाने की तैयारी कर रही थी। जारून भी ऑफिस से आ गया था और इस वक्त लाउंज में ही बीजान के पास बैठा हुआ था। जारून ने भी यशल को अपने कमरे से बाहर आता हुआ देखा, मगर यशल को उस वक्त इस कदर भूख लगी हुई थी कि उसका ध्यान इस वक्त कहीं भी नहीं था। वो सीधी किचन की तरफ जाने लगी। जब ही बीजान ने यशल को आवाज़ दी, यशल ज़रा इधर आओ। बीजान यशल को अपने पास बुला रही थी। उसने चौंक कर बीजान की तरफ देखा और फिर उनके घुटने पर सर रखकर लेटे जारून की तरफ देखा। जारून को देखकर उसे बेख्तियार ही अपनी चोट का ख्याल आ गया। उसने अपने माथे पर हाथ लगाया था। जी बीजान। यशल ने उनके सामने खड़े होते सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। तुम अभी सोकर उठी हो क्या? बीजान ने अपने चश्मे के पार से उसे सख्त नज़रों से देखा और फिर सवाल किया था। जी, यशल ने बमुश्किल जवाब दिया। वो जानती थी कि अब उसे बीजान से भी इस बात पर डांट खानी पड़ेगी। बीजान यशल के बेवक्त सोने के सख्त मुखालिफ थी, मगर वो भी यशल थी, किसी की सुनती नहीं थी। कितनी बार तुम्हें कहा है कि रात को जल्दी सोया करो, इस तरह बेवक्त अपनी नींद मत भरा करो। अब तुम सारी रात उल्लुओं की तरह जागती रहोगी, बीजान ने सख्त लहजे में कहते हुए यशल की क्लास लगाई। बीजान के उसे उल्लू कहने पर यशल सदमे में चली गई, जबकि जारून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यशल ने जब्त से जारून को मुस्कुराते हुए देखा और फिर बीजान को देखा। बीजान, आपके कहने पर ही मैं ऑफिस जाना शुरू हुई हूँ। अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकती। यशल ने मुंह फुलाए हुए साफ हरी झंडी दिखाई। अरे लड़की, मेरा पोता कौन सा तुमसे अपने ऑफिस में पहाड़ खुदवा रहा है जो तुम्हें ऑफिस जाना इतना मुश्किल लग रहा है? सारा दिन मेज कुर्सी पर बैठी रहती हो और शाम होते ही घर वापस आ जाती हो। मेरे पोते से कुछ सीखो। सुबह मुंह अंधेरे ही उठ जाता है और रात गए घर वापस आता है। बीजान ने मोहब्बत से जारून के घने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। यशल ने बीजान की बात सुनकर सदमे और दुख से उन्हें देखा। दादी पोते ने मिलकर उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक ऑफिस में उसकी जान हलकान किए रखता था, उसे बात बेबात डांटता रहता था, और जब वो घर आती तो दादी अपने पोते की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते नहीं थकती थी। यशल ने अपनी मुट्ठियाँ भींचकर ढेर सारा गुस्सा अपने अंदर उतारा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसी वक्त उसकी मामा किचन से बाहर आई थी। ईशल, तुम उठ गई? मैं तुम्हें ही उठाने आ रही थी। आ जाओ, खाना तैयार है। तुमने सुबह से मुझसे आलू के पराठों की फरमाइश की थी। सायमा बेगम ने अपनी बेटी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते कहा। दरहकीकत वो यशल को बीजान के अताब से बचाना चाहती थी, जब भी वो सबको खाने के लिए बुलाने आई थी। यशल ने बेख्तियार ही सुकून की सांस भरी कि दादी पोते की जोड़ी उसे कहीं भी सुकून नहीं लेने देती थी। यशल फौरन ही डाइनिंग टेबल के गिर्द बढ़ी और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। जारून बीजान को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया था। पहले उन्हें बिठाया और फिर खुद यशल के सामने वाली कुर्सी पर बैठा। यशल ने अपने सामने असली घी से तरबतर आलू का पराठा रखा और साथ ही अपनी प्लेट में रायता और अचार निकाला, जबकि इस कदर
ऑयली खाना देखकर जारून की भूख ही उड़ गई। वो यशल को इस कदर शौक से खाना खाते देख रहा था और फिर उसकी स्मार्टनेस को देखा था। यशल, तुम्हारे सर पर क्या हुआ? बीजान ने यशल के माथे को सूजा हुआ देखा तो उससे सवाल किया। यकदम ही खाना खाते खाते यशल का हाथ थमा। उसने बेख्तियार ही अपने सामने बैठे जारून की तरफ देखा। दोनों की निगाहें चंद लम्हों के लिए टकराईं। जारून ने उसकी आंखों में खफगी को उभरते देखा था। यशल ने सर झटक कर दोबारा से अपनी तवज्जो खाने की तरफ मरकूज की। कुछ नहीं बीजान, दीवार से टकरा गई थी। यशल ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनके लाडले पोते की वजह से उसे चोट लगी थी। अगर वो उसे नहीं डांटता तो उसे ये चोट भी ना लगती। जबकि जारून अपनी मुस्कुराहट दबाए दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। घर में काफी दिनों से चुपके चुपके बातें हो रही थी, मगर यशल को कुछ खबर नहीं थी कि ये बातें किस बारे में हो रही हैं। उसने महसूस तो कर लिया था कि घर में जरूर कुछ मसला चल रहा है, मगर जैसे ही वो आती सब लोग खामोश हो जाया करते थे। उस रोज यशल ने किचन में खड़ी नेमत बेगम को मुखातिब किया। नेमत बेगम उनके घर में कई सालों से काम करते आ रही थी। नेमत बेगम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? यशल ने किचन से बाहर झांकते हुए इधर उधर देखा और फिर किचन काउंटर के पास आकर खड़ी हुई और इंतहाई राजदारी से उनसे मुखातिब हुई। नेमत बेगम ने चौंक कर यशल की तरफ देखा और फिर सलाद काटते हुए असबात में सर हिलाया। यशल इस घर की रौनक थी, सबकी उसमें जान बसती थी। साथ ही वो बहुत शरारती भी थी। हर कोई उसकी शरारतों से तंग था, मगर सबसे ज्यादा उसकी शरारतों से जारून तंग था। इसीलिए जारून ने यशल के अपने कमरे में आने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई थी। जारून का कहना था कि यशल को उससे 10 फुट के फासले पर हर हाल में रहना चाहिए। नेमत बेगम, घर में क्या बातें चल रही हैं? जैसे ही मैं आती हूँ सब लोग खामोश हो जाते हैं। मैं पूछती भी हूँ तो सब लोग मुस्कुरा देते हैं, मगर मुझे कुछ नहीं बताते। सबको लगता है मैं छोटी हूँ, अभी मुझे समझ नहीं, मगर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, सारी बातें समझने लगी हूँ। इसलिए घर की बातें मुझे भी मालूम होनी चाहिए। यशल ने खीरे का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते मासूमियत से अपनी आंखें पटपटाईं। नेमत बेगम ने मुस्कुराकर यशल की तरफ देखा। वैसे तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता, मगर मैं इतना जानती हूँ कि घर में जारून की शादी की बातें हो रही हैं। नेमत बेगम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। नेमत बेगम की बात सुनकर यशल की आंखें हैरत से फैली और फिर बेयकीनी से उसके मुंह से चीख बरामद हुई। नेमत बेगम ने घबराकर किचन के दरवाजे की तरफ देखा और फिर बेख्तियार ही पछताई थी। यशल के इस रद्द अमल पर उन्होंने यशल को पूरी बात बताने का इरादा ही तर्क कर दिया। हल्के चीखो यशल, नेमत बेगम ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि यशल के चेहरे पर हैरानी दिखाई दे रही थी। नेमत बेगम, आप सच कह रही हैं? जारून की शादी हो रही है? यशल ने सुकून की सांस भरते उनसे तस्दीक चाही। नेमत बेगम को यशल की खुशी की वजह समझ नहीं आई थी। उन्होंने तो अभी यशल को ये बात बताई ही नहीं थी कि जारून की शादी किससे हो रही है, मगर ये बात जानने से पहले ही यशल की खुशी उन्हें हैरत में मुब्तला कर रही थी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मगर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? नेमत बेगम ने उससे मशकूक नज़रों से घूरते हुए सवाल किया। नेमत बेगम का सर चकरा कर रह गया। देखिए नेमत बेगम, जारून की शादी हो रही है तो इस बात पर मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को हो ही नहीं सकती। यशल ने स्लैब पर चढ़कर बैठते हुए कहा। नेमत बेगम अभी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। वो कैसे? उनके मुंह से सिर्फ इतना ही फिसला था। उनका सवाल सुनकर यशल ने अपना सर थाम लिया। वो ऐसे कि जब जारून की शादी हो जाएगी तो उनका सारा ध्यान अपनी नई नवेली बीवी के नाज नखरे उठाने में निकल जाएगा और फिर वो भूल जाएंगे कि इस दुनिया में कोई यशल भी है। उन्हें ना ही मुझे डांटना याद रहेगा और ना ही मेरे कामों में कीड़े निकालना याद रहेगा, और बीजान वो भी मेरा पीछा छोड़ देंगी। फिर उनकी सारी तवज्जो आने वाली बहू की तरफ होगी। जिस तरह से वो अम्मी और ताई अम्मी से काम करवाया करती थी, उसी तरह से अपनी नई नवेली बहू पर भी जुल्म करेंगी। वो भी मुझे भूल जाएंगी और फिर मैं कभी भी सोकर उठूंगी तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि बीजान का सारा ध्यान इस तरफ होगा कि उनकी बहू कब सोकर उठ रही है। और फिर जब वो उसे बातें सुनाएंगी तो जारून को बुरा लगेगा।
वो बीजान को टोकेंगे। उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे तो बीजान भी अपने पोते का असल रूप देख लेंगी। फिर वो अपने पोते को छोड़कर मुझसे प्यार करने लगेंगी। तब जाकर उन्हें मेरी असल कदर आएगी। यशल ने राय का पहाड़ बनाया था, जबकि नेमत बेगम उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसके लिए परेशान हुई थी और ज़ेरे लब इस्तग़फ़ार पड़ी थी। उन्हें आज इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि इस लड़की की अकल लाजमी तौर पर घास चरने गई थी। उन्हें उस वक्त से खौफ आने लगा कि जब यशल को मालूम होगा कि ज़ारून का रिश्ता किससे हो रहा था। ये सोचकर उन्होंने बेख्तियार ही झुरझुरी ली और अपनी हंडिया की तरफ मुतवज्जो हो गई। इस लड़की ने तो उनका दिमाग ही हिला कर रख दिया था। यशल इस वक्त ज़ारून के ऑफिस रूम में खड़ी थी। उसके साथ उसकी कुलीग भी थी। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थीं। यशल ने अपनी नेचर की वजह से बहुत जल्द सबसे दोस्ती कर ली। ज़ारून ने उन दोनों को एक प्रोजेक्ट की अपडेट लेने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था, मगर वो खुद अब तक मीटिंग में मसरूफ़ था। जब भी वो अपने ऑफिस में नहीं आया था, यशल जाकर ज़ारून की कुर्सी पर बैठ गई। सिद्रा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। यशल ने बगौर उसके चेहरे को देखा। सिद्रा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? यशल ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया और सिद्रा ने चौंक कर यशल को देखा। यशल, सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम दोनों ने किया है। अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हुई तो तुम जानती हो फिर हमें ज़ारून सर की अताब से कोई नहीं बचा सकता। सिद्रा ने नाखून कुतरते हुए यशल को मामले की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। यशल ने लापरवाही से कंधे उचकाकर सिद्रा की तरफ देखा। तुम ही डरो उनकी डांट से? मैं तो बचपन से उनकी डांट सुनती आई हूँ। अब तो मुझे आदत हो गई है। अगर किसी दिन वो मुझे ना डांटे तो मुझे टेंशन होने लगती है कि वो ठीक हैं या नहीं। यशल ने मुस्कुराते हुए कहा और पेपर वेट उठाकर खेलने लगी। सिद्रा ने बेहद हैरानी से उसके ढीठपन को मुलाहिजा किया था। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि ज़ारून की शादी की बात तय हो गई है। यशल ने सिद्रा की तरफ झुकते हुए राजदारी से कहा और फिर इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। शुक्र है कि हमारे खड़ूस बॉस की शादी तय हो गई। अब इनकी बीवी ही इन्हें भुगतेगी। यशल ने दोनों हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। वो इस बात से यकसर अनजान थी कि ज़ारून की शादी किससे तय हुई है। अगर इस लम्हे उसे मालूम हो जाता कि ज़ारून की शादी किसी और से नहीं बल्कि उसी से तय हुई है तो वो एक हंगामा खड़ा कर देती। अपनी ही धुन में बोलते हुए उसने सर उठाकर देखा तो ज़ारून सामने ही अपने सीने पर हाथ बांधे खा जाने वाली नज़रों से यशल को घूर रहा था। ज़ारून को देखकर सिद्रा और यशल दोनों ही बैक वक्त अपनी जगह से खड़ी हुई। मेरे ऑफिस में मेरी ही बुराइयां की जा रही हैं। ज़ारून ने अब्रू उचकाकर यशल को देखा और उसने बेख्तियार थूक निकला और सहमी हुई नज़रों से ज़ारून की तरफ देखा, जो खुद पर बामुश्किल ही जब्त किए खड़ा था। वो मैं यशल ने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर ज़ारून उसी वक्त सिद्रा की तरफ मुतवज्जो हुआ। सिद्रा, आप जाएं, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ, ज़ारून ने निस्बतन नरम लहजे में सिद्रा से कहा। सिद्रा फौरन ही अपने सर पर पैर रखकर वहाँ से भाग गई। यशल ने मुंह खोले उसे जाते देखा। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और इस मुश्किल घड़ी में वो उसे छोड़कर जा रही थी। यशल ने बाद में सिद्रा से दो हाथ करने का फैसला किया, मगर इस वक्त उसे अपने सर पर आई इस मुसीबत से भी निपटना था जो तुंदही से उसे घूर रही थी। ज़ारून चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांक रहा था। यशल की आंखों का रंग मजीद सुनहरा हुआ। ग्लास वॉल से छन कर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसकी आंखों के साथ साथ उसके चेहरे को भी सुनहरा कर रही थी। वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी, यशल ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये किसने बताया कि मेरी शादी हो रही है? ज़ारून ने दिलचस्पी से उसके सभी चेहरे की तरफ देखते सवाल किया। मुझे नेमत बेगम ने बताया कि घर में आपकी शादी की बातें चल रही हैं, यशल ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, और ज़ारून ने उसकी बात सुनकर असबात में सर हिलाया। नेमत बेगम ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है? ज़ारून ने दिलचस्पी से सवाल किया। यशल ने बेख्तियार अपना सर इनकार में हिलाया।
जारून के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वेरी गुड, आधी बात सुनकर ही तुम तो मामले की तह तक पहुंच गई। जारून ने उसकी बेवकूफ़ी पर चोट की। यशल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, मगर ये सच था कि जारून को इस तरह से अपने सामने खड़ा देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ गई थी। वो किसी भी तरह इस मंजर से गायब हो जाना चाहती थी। वो दिल ही दिल में हजारों मंत्र पढ़ रही थी, मगर उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था। तुम मेरे ऑफिस में बैठकर मेरी ही बुराइयां कर रही हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जारून ने एक कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यकदम ही यशल के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। उसने फौरन ही उस आइडिया पर अमल करने की ठानी। वो बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए ज़मीन पर गिरने लगी थी, मगर अगले ही पल जारून ने अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में उसे संभाल लिया। यशल की आंखें बंद हो चुकी थीं, ये जाने बगैर कि जारून उसकी अदाकारी को भांप गया था। अगले ही पल जारून ने उसे छोड़ा और यशल ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरने की वजह से उसकी चीख बुलंद हुई थी। उसने जल्दी से आंखें खोलकर जारून की तरफ देखा, जो मुस्कुराहट दबाए उसे ही देख रहा था। आइंदा जब बेहोश होने की अदाकारी करना तो ज़रा ठीक से करना, वरना अगली बार मैं तुम्हें उठाकर इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। जारून ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जबकि यशल ज़मीन पर सदमे की कैफियत में बैठी रह गई। फिर वो हिम्मत करती अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने नाराज़ नज़रों से जारून की तरफ देखा और फिर ग्लास वॉल से झांक कर देखा। वो दोनों इस वक्त 10वीं मंजिल पर खड़े थे। यशल ने बेख्तियार ही झुरझुरी भरी। उसे कोई बई नहीं था कि वो उसे 10वीं मंजिल से फेंक सकता था। यशल ने दिल ही दिल में हजारों सलावातें सुनाई और फिर पैर पटकती हुई उसके ऑफिस से बाहर निकली। ये बात अलग थी कि वो आज भी ग्लास वॉल से टकराते बाल बाल बची थी। यशल के जाने के बाद जारून का कहकहा गूंजा था, जिसे वो मुश्किल से जब्त किए खड़ा था। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? यशल अपनी माँ के सामने बैठी थी और हैरानी और परेशानी से उनका चेहरा देख रही थी। पहले पहल तो यशल को आज की बात समझ ही नहीं आई थी, और फिर जब उसे अपनी माँ की बात समझ आई तो वो अपनी जगह से उछल पड़ी। सायमा बेगम ने जब्त से अपनी बेटी की तरफ देखा, जो उनकी बात सुनकर इस तरह उछली थी कि जैसे किसी ने उसे डंग मार लिया हो। यशल, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? कल को तुम्हारी शादी करनी है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सायमा बेगम ने इस बार रिसान से उसे समझाते कहा। जारून अच्छा लड़का है, वो हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस रिश्ते में कोई बुराई है या फिर इनकार की कोई भी गुंजाइश मौजूद है। सायमा बेगम ने उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसे साफ हरी झंडी दिखाई थी कि वो उसकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। यशल बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई। लेकिन अम्मी, आप लोग ऐसे कैसे मुझसे पूछे बगैर ही मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं? यशल चीख ही पड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके माँ बाप उसके साथ ये कर सकते हैं। यशल, मुझे बताओ, जारून में क्या बुराई है? सायमा बेगम ने कुछ सख्ती से उससे सवाल किया। यशल ने गहरा सांस भरकर अपनी मुट्ठियां भेजी। वो ऑफिस से आकर सीधा अपने रूम में सोने के लिए आई थी जब सायमा बेगम उसके कमरे में आई और उन्होंने यशल को घर वालों के फैसले के मुतालिक बताया कि सब घर वालों की मर्जी है कि उसका और जारून का रिश्ता तय कर दिया गया है। अपनी माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो कितनी ही देर सदमे की कैफियत में बैठी रही और फिर बुरी तरह से फटी। अम्मी, मैं जारून से शादी करने पर राजी नहीं हूँ। प्लीज़ आप लोग इस रिश्ते पर मुझ पर जोर मत दें। मैंने कभी जारून के मुतालिक इस तरह से नहीं सोचा और ना ही मैं उनके बारे में कभी ऐसा सोच सकती हूँ, यशल ने हतमी लहजे में कहा। सायमा बेगम ने जब्त से अपनी सर फिरी और जिद्दी बेटी की तरफ देखा, जो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यशल, जारून में क्या कमी है जो तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? सायमा बेगम ने दुरुस्त लहजे में सवाल किया। वो हमेशा से मुझे डांटते रहे हैं, उन्हें ही हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रही है। अब आप चाहती हैं कि मैं उन्हीं से शादी कर लूं ताकि बुढ़ापे तक मैं उनकी डांट खाती रहूं? यशल ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को बेदर्दी से पोंछते हुए नम लहजे में कहा। और उसकी बात सुनकर सायमा बेगम ने पहले उसे हैरानी से देखा और फिर अपना सर थाम लिया। और वैसे भी
उन्होंने तो मुझ पर अपने कमरे में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा रखी है। फिर मुझसे शादी करने के बाद वो मुझे अपने कमरे में कैसे बर्दाश्त करेंगे? यशल ने सूं सूं करते हुए कहा, जबकि साइमा बेगम हैरान और परेशान सी उसकी बातें सुन रही थी। यशल, तुम जानती भी हो कि तुमने क्या शरारत की थी? तुम ज़ारून से पूछे बगैर अपनी सारी दोस्तों को उसके कमरे में ले गई थी और ज़ारून की सारी चीज़ें उनमें बांट दी थी। उसे गुस्सा तो आएगा ना? साइमा बेगम ने ज़ारून की तरफदारी करते हुए कहा और यशल ने सटपटा कर उन्हें देखा। यशल, अच्छे से सोच लो, ज़ारून जैसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते। ज़ारून से शादी करने में कोई बुराई नहीं, वो हर लिहाज से अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। साइमा बेगम ने अपनी जगह से खड़े होते कहा, लगता है आप लोगों ने ज़ारून से इस बारे में कोई बात नहीं की। आप ज़ारून से मुझसे शादी के बारे में बात करेंगे तो वो मना कर देंगे। वो तो खुद भी मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। यशल ने आपकी बार इत्मीनान से कह दिया, मगर साइमा बेगम ने भी कसम खा रखी थी कि वो उसका सारा इत्मीनान गारत करके ही रहेंगी। ज़ारून से इस बारे में पहले ही बात कर ली गई है और उसे इस रिश्ते पर कोई भी एतराज़ नहीं। वो अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार बच्चा है, तुम्हारी तरह ज़िद्दी और हट धर्म नहीं है। साइमा बेगम ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा और फिर उसे बुत बना छोड़कर कमरे से निकल गई, जबकि यशल मुंह खोले साकित खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारून ने उसे शादी करने पर कैसे हामी भर ली। डिनर टेबल पर सब मौजूद थे, मगर आज यशल मौजूद नहीं थी। बीजान ने यशल के मुतालिक सवाल किया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि वो खाने की टेबल पर ना आए। अब साइमा बेगम सबको क्या जवाब देती कि यशल को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए वो एहतजाजन खाना नहीं खा रही। बीजान, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं उसे उसके कमरे में खाना दे दूंगी। साइमा बेगम ने असल बात छुपाते हुए कहा, मगर उनके चेहरे के तासुरात देखकर ज़ारून समझ गया था कि यशल को इस रिश्ते के मुतालिक इल्म हो गया है। वो भी जानता था कि यशल इतनी आसानी से उससे शादी करने पर राज़ी नहीं होगी। खाना खाकर ज़ारून अपने कमरे में आ गया, मगर उसे रह रहकर यशल का ही ख्याल सता रहा था। मगर इस वक्त उसके कमरे में जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, इसलिए उसने यशल से सुबह ऑफिस में बात करने का फ़ैसला किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। वो जाने कब नींद की आगोश में गया, उसे मालूम ही ना हो सका। अगले रोज़ यशल ऑफिस भी नहीं गई थी और जब साइमा बेगम ने उससे ऑफिस जाने के मुतालिक सवाल किया तो वो कुछ नहीं बोली। साइमा बेगम भी कुछ वक्त के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहती थी। ज़ारून ने ऑफिस में यशल का इंतज़ार किया, मगर उसका ये इंतज़ार बेसूद साबित हुआ। यशल नहीं आई थी। उसे यशल की इस हरकत पर गुस्सा तो चढ़ा था, मगर वो खुद पर काबू कर गया। वो घर गया तो यशल उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी और ना ही वो आज भी खाने की टेबल पर मौजूद थी। उसकी नाराज़गी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी और ना ही वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हुई थी। ज़ारून ने यशल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यशल ने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ारून को देखकर बुरी तरह से ठुठक गई। ज़ारून ने बगौर उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसे देखकर वाज़िहा महसूस हो रहा था कि वो रोती रही थी। मैं अंदर आ जाऊं? ज़ारून ने उसे हनूस अपने कमरे के दरवाजे पर जम कर खड़ा देखा तो सवाल किया। यशल फौरन ही सटपटाकर दरवाजे से हटी और उसे कमरे में आने का रास्ता दिया। ज़ारून यशल के कमरे में आकर उसके सामने इत्मीनान से अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ। यशल हैरानी से इसे देख रही थी। वो जिंदगी में पहली बार उसके कमरे में आया था। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कल भी तुम डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं थी और आज भी तुमने कुछ नहीं खाया। चची जान ने बताया कि तुम कल से कुछ नहीं खा रही। क्या मैं जान सकता हूँ कि खाने से कैसी नाराज़गी है? ज़ारून ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाए संजीदा लहजे में सवाल किया। मुझे भूख नहीं है, यशल ने सर झुकाए इस कदर धीमे लहजे में कहा था कि ज़ारून को भी उसकी बात बमुश्किल ही सुनाई दी थी। इधर देखो मेरी तरफ, उसने भारी लहजे में उसे मुखातिब किया और यशल का दिल ज़ोर से धड़का। पहली बार यशल को ज़ारून की तरफ देखना बहुत ही मुश्किल लग रहा था।
उसने बमुश्किल नजरें उठाकर जारून की तरफ देखा। घनी दाढ़ी से होते हुए उसकी नजरें जारून की आंखों पर टिकी थी। चंद लम्हे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक कर देखते रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही? जारून ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए सर्द लहजे में सवाल किया। यशल ने दोबारा निगाहें चुराने की कोशिश की थी, मगर इस बार जारून ने उसकी ठोड़ी पर नरमी से हाथ रखते हुए उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। जारून के पुरतपिश लम्स पर यशल के जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। उसने धड़कते दिल के साथ जारून को देखा। जारून की आंखों में इस वक्त कई जज्बात हलकोरे ले रहे थे। मेरा गुस्सा खाने पर मत उतारो। मैंने तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया है, वो खा लेना। इस बार जारून ने नरम लहजे में कहा। आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, यशल ने जिद्दी लहजे में उससे कहा। और जारून ने अबरू उठाकर हैरानी से उसे देखा। अच्छा, क्यों इनकार कर दूं? कोई ठोस वजह तो हो इनकार करने की? जारून ने महसूस होते हुए सवाल किया। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि आप मुझे पसंद नहीं करते और घर वालों के मजबूर करने पर ज़बरदस्ती मुझसे शादी करने को राज़ी हुए हैं? इस बार यशल की आंखों में नमी आई थी। वो किसी भी लम्हे रो देने को बेताब थी। और ये तुमसे किसने कहा कि मुझे किसी ने तुमसे शादी करने पर मजबूर किया है? जारून ने नरम लहजे में कहा। ये किसी के कहने की क्या ज़रूरत है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप यकीनन बीजान की वजह से मजबूर हो गए होंगे, और मैं किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहती हूँ जो ज़बरदस्ती बांधा गया हो। यशल की आंखों से आंसू निकलने लगे। यशल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती हुआ है? जारून हैरान हुआ, क्योंकि ये तो मैं भी जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। हमेशा से मुझे डांटते रहे हैं, अब आप क्यों मुझसे शादी करेंगे? और वैसे भी आपने तो मुझ पर अपने कमरे में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगाई हुई है, तो आप मुझे कैसे अपने कमरे में बर्दाश्त करेंगे? यशल ने नाराज लहजे में कहा। अब जाकर जारून को असल बात समझ आई। वो जारून की सख्त मिजाजी को उसकी नापसंदीदगी समझ रही थी। अगर मैं कहूँ तुम्हारा मुझ पर और मेरी चीज़ों पर मुझसे ज़्यादा हक है, तुम जैसे चाहो उन्हें इस्तेमाल कर सकती हो, जैसे चाहो उनके साथ सलूक कर सकती हो, तो क्या जब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा? जारून उसके बेहद करीब खड़ा उससे सवाल कर रहा था। जारून का सवाल सुनकर यशल ने बहुत ही चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे जारून की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। वो खामोशी से जारून को देखती रही। तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तुम आराम से इस रिश्ते के लिए सोच लो, फिर जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब इनकार होगा तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, जारून ने नरम लहजे में कहा। उसका दिल बुरी तरह से धड़का था। वो उसके कमरे से चला गया और यशल कितनी ही देर अपनी जगह साकित सी खड़ी रही। अम्मी, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, आप प्लीज़ मुझे जाने दें, यशल ने अपनी माँ के सामने खड़े होते हुए उनकी मिन्नत की। और साइमा बेगम ने तुंद नज़रों से यशल की तरफ देखा। जारून ने सबको मना कर दिया था कि फ़िलहाल कोई भी यशल से इस बारे में कोई बात ना करे, और अगर वो इनकार कर दे तो कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती ना करे। इसलिए साइमा बेगम उससे नाराज़ थी। वो दिल से चाहती थी कि जारून और यशल का निकाह हो जाए, लेकिन यशल की बेवकूफ़ियों से ये सब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, अपने कमरे में जाओ। साइमा बेगम उस वक्त लाउंज में बैठी कपड़े तय कर रही थी। उनका साफ इनकार सुनकर यशल का चेहरा बुझ सा गया। उसी वक्त जारून ऑफिस से वापस आया था। वो हमेशा की तरह बीजान के पास आया था और उनके सामने सर झुकाकर बैठा था। बीजान ने हमेशा की तरह उसके माथे पर प्यार दिया था। जारून को देखकर यशल चंद लम्हों के लिए थमी। जारून वहीं बीजान के बराबर में बैठ गया। अम्मी, प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं वादा करती हूँ जल्दी घर आ जाऊंगी,
یشل نے اس بار دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا یشل، تم رات کے وقت گھر سے باہر نہیں جاؤ گی؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ سائمہ بیگم نے اس کی ضد سے تنگ آ کر اسے بلند آواز میں ڈانٹا۔ یشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچی جان، کہاں جانا چاہتی ہے یشل؟ زارون نے سائمہ بیگم کو مخاطب کر کے سوال کیا۔ اس وقت اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چاہتی ہے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سی دوست ہے، کب بنی ہے، اور یہ جانے کی ضد لگائے بیٹھی ہے۔ سائمہ بیگم نے مصروف سے انداز میں اسے بتایا۔ چچی جان، اگر یہ جانا چاہتی ہے تو جانے دیں، میں چھوڑ کر آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، زارون نے رسانیت سے کہا۔ نہیں، میں اپنی فرینڈز کے ساتھ جاؤں گی، یشل نے ضدی لہجے میں کہا، اور سائمہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ زارون نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کر دیا۔ آخرکار زارون کے کہنے پر انہوں نے یشل کو اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی اجازت دے دی۔ یشل تیار ہو کر اپنے کمرے سے آئی تو زارون اب بھی لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یشل نے بلیک رنگ کی پیروں کو چھوتی میکسی پہن رکھی تھی، ساتھ میں ہی نازک سی جیولری بھی پہن رکھی تھی۔ کمر کے خم تک آتے بالوں میں کرلز ڈال کر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ زارون کا دل بے اختیار ہی دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں چرا لی۔ یشل نے زارون کا دیکھنا اور پھر نگاہوں کا چرانا شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی، کیونکہ باہر اس کی فرینڈز اسے گاڑی میں لینے کے لیے آ چکی تھیں۔ یشل کی دوست نے اپنی برتھ ڈے پارٹی ایک بہت بڑے ہوٹل میں رکھی تھی۔ اس پارٹی میں ہر قسم کے اس کے دوست آئے ہوئے تھے، اس میں لڑکیاں بھی تھیں تو لڑکے بھی تھے۔ یشل اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ تھی جب ایک ویٹر اس کے برابر میں سے گزرا اور اس نے یشل کے ڈریس پر سوپ کا پیالہ انڈیلا تھا۔ یشل سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس کا پورا ڈریس خراب ہو چکا تھا۔ یشل نے اس ویٹر کو کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے واش روم ایریا کی طرف بڑھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے سارا جال بچھایا گیا ہے۔ وہ ہوٹل جب واش روم سے اپنا ڈریس صاف کر کے باہر نکلی، لمبی سی راہداری اس وقت سنسان پڑی ہوئی تھی۔ یشل اپنی ہی دھن میں مگن آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ آگے لے کر بڑھا۔ یشل اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ وہ اسے لابی کے آخری کونے پر بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے آیا اور اسے اندر دھکیل کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یشل جا کر زمین پر گر گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا کہ اسے یہاں کون لے کر آیا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اسے اس کمرے میں بند کر کے یہاں سے جا چکا تھا۔ یشل تڑپ کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا چاہا، مگر وہاں شاید اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ بجاتے بجاتے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں کون بند کر کے گیا تھا۔ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ یکدم ہی اسے خیال آیا کہ اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ سچ شکر کہ اس کا پرس اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور اپنی دوست کا نمبر ڈائل کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص دوبارہ آتا، اسے یہاں سے ہر قیمت پر نکلنا تھا، مگر اس کی کوئی بھی دوست اس وقت کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے بے حد حیرانی ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس زارون کو فون کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے زارون کو کال ملائی۔ زارون اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اپنے موبائل پر یشل کی کال آتے دیکھ کر وہ حیران ہوا اور پھر اس نے اگلے ہی پل فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ زارون، مجھے آ کر لے جائیں۔ یشل کی بھیگی ہوئی آواز زارون کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یشل، کیا ہوا ہے؟
तुम रो क्यों रही हो? जारून बुरी तरह परेशान हो गया। मुझे किसी ने होटल के कमरे में बंद कर दिया है और दरवाजा बाहर से लॉक है। वो बुरी तरह रो रही थी। यशल, रोना बंद करो और अपनी लोकेशन ऑन करो। मैं बस 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, जारून ने उससे कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकला। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में मौजूद थे। जारून अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। उसके 25 मिनट का रास्ता महज 10 मिनटों में उसने तय कर लिया और 90 मिनट पर वो उस होटल के बाहर खड़ा था। वो तेजी से अंदर गया। यशल के मोबाइल की लोकेशन ऑन थी। वो उस कमरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ। उसका दिल धड़कते धड़कते यकदम ही थमा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर हैंडल घुमाया, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो बुरी तरह से परेशान हो गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया था और अंदर बैठी डरी सहमी सी यशल ने बेख्तियार ही अपनी चीख रोकी थी। अगले ही पल उसका मोबाइल थरथराया। उसने फौरन ही कॉल उठाई। यशल, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। जारून ने उसकी आवाज़ सुनने पर सुकून का सांस खारिज किया और नरमी से कहा। यशल एक लम्हे की भी देरी किए बिना अपनी जगह से उठी और फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के पार जारून खड़ा था। जारून को देखकर यशल ने गहरी सांस भरी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की सूरत टूटने लगे थे और जारून उसकी बिखरी हुई हालत देखकर उसके करीब आया। यशल उसे देखकर तड़प कर उसकी तरफ लपकी और फिर उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जारून अपनी जगह साकित हुआ, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन गई थी। जारून ने उसके रेशमी बालों में हाथ फेर कर उसे खामोश करवाने की कोशिश की। मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, जारून ने नरम लहजे में उसे तसल्ली दे दी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और यशल की दोस्तें उस कमरे में आ गई। उन सब के मुंह से एक साथ ही निकला था, प्रैंक। मगर यशल के साथ जारून को देखकर उन सब की सीटी गुम हो गई। वो लोग जारून को यशल की कज़न की हैसियत से जानती थी और ये भी जानती थी कि जारून गुस्से का कितना तेज था। जारून उन सबको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जबकि यशल अब भी उससे लगी खड़ी थी। ये कोई तरीका होता है मजाक करने का? जारून की धाड़ गूंजी और सब लोग सन्नाटे में खड़े रह गए। वो हमने बस एक छोटा सा मजाक किया था, यशल की दोस्त ने थूक निगलते हुए बमुश्किल कहा। वो सब भी यशल की हालत देख रही थी। अगर यशल को कुछ भी हो जाता तो मैं तुम सबकी जान ले लेता, जारून ने यशल को खुद से लगाए इंतहाई गुस्से से कहा और यशल को वहां से अपने साथ लिए आगे बढ़ा। उसने यशल को नरमी से गाड़ी में बिठाया और तेजी से गाड़ी वहां से निकाली। दोनों के दरमियान सारे रास्ते खामोशी छाई रही थी, जबकि यशल अब भी डरी सहमी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद गाड़ी घर के पोर्च में रोकी और जारून ने पलटकर यशल को देखा, जिसने आंखें रो रो कर सुझा ली थी। तुमने तो आज मेरी जान ही निकाली, जारून ने उसके नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते नरमी से कहा। यशल ने पलकें उठाकर जारून की तरफ देखा और फिर जारून ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को अपनी पलकों की पोरों पर चुना। यशल उसके लम्स पे सुर्ख पड़ गई। जारून ने बहुत गौर से यह मंजर देखा था। तुम्हें जब कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी एक आवाज़ पर दौड़ा चलाऊंगा, कभी खुद को अकेला महसूस मत करना, जारून ने उसके गाल पर नरमी से हाथ रखते उसे तसल्ली दी। और हाँ, इस बात का जिक्र घर में किसी से मत करना, सब बिला वजह परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी तुम आजकल चच्ची जान के रडार पर आई भी हो। आखिर में उसका लहजा शोख हुआ था। यशल के चेहरे पर झेंपी झेंपी से मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गई थी कि जारून का इशारा किस तरफ था। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। जारून ने दुख से उसे जाते हुए देखा। वो इस लड़की को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वो उस पर ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत को मुसल्लत भी नहीं करना चाहता था। जब ही फैसला उस पर छोड़ दिया था, उसने दुख से आसमान की तरफ देखा और फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। दूर आसमानों में कहीं उसकी बात सुन ली गई थी। उसकी मोहब्बत उसकी झोली में डाल दी गई थी। यशल ने जारून से शादी करने पर हामी भर ली थी।
पूरे घर में खुशियों की लहरें दौड़ गई थीं। बीजान बार बार यशल को अपने साथ लगाकर प्यार कर रही थी, तो कभी ताई अम्मी अपने होने वाली बहू की बलाई ले रही थी और साइमा बेगम उसकी नज़र उतार रही थी। यशल को ये बात समझ आ गई थी कि इस दुनिया में मर्द तो हजारों होंगे, मगर मुहाफिज कोई कोई ही होता है।